नाश होने वाले सोने चांदी से नहीं हुआ, लेकिन कभी नाश न होने वाले यीशु के लहू से हुआ है। So the book of Hebrew, the writer of Hebrews is saying, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge our conscience from dead works to serve the living God. तो वचन कहता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा प्रभु परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। To purge your conscience means once the blood has purged your conscience, there is no remembrance of your past anymore. जब आपके विवेक का शुद्धिकरण हो जाता है, तो आपके पुराने कामों का, पुराने पापों का कोई भी याद नहीं रहती। The blood of Christ separates us from the past eternally. प्रभु यीशु का लहू हमें हमारे बीते हुए कल से हमेशा के लिए अलग कर देता है। All our old thoughts, our old nature, our old wrongdoings, everything has been separated from us. They no longer belong to us. It is as if it never happened. हमारे पुराने विचार, पुराने काम, पुराने कार्य, कोई भी जो है वो हमारे नए जीवन पे कोई भी असर नहीं डालते। वो ऐसा यीशु ने अब कर दिया है कि जैसा कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। Hallelujah. You and I are a new creation in Christ Jesus आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन चुके हैं, because of the blood. क्यों? यीशु के लहू की वजह से। Saints, the moment you mention the blood, the Spirit of God will show up. यीशु का लहू जो है वो अगर हम उससे मनन करते जाएंगे तो उसका लहू यहाँ पे काम करेगा। The Holy Ghost answers the blood of Christ. पवित्र आत्मा जो है वो मसीह के लहू के द्वारा कार्य करता है। I already sense an healing anointing in the house. मैं महसूस कर पा रहा हूँ चंगाई की अभिषेक को इस जगह पे। Even as you partake in the Lord's Supper, जैसे आप प्रभु भोज में भाग लोगे, even as you are partaking in the Lord's Supper, जैसे आप प्रभु भोज में भाग लोगे, you'll start experiencing the resurrection power in your body. आप मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ आपके शरीर में महसूस करोगे। No matter what sickness is trying to thrive in your body, it will start diminishing, it will fade and leave you. ये मायने नहीं रखता कि कौन सी बीमारी आपके शरीर में आना चाहती है, लेकिन जैसे आप मसीह के लहू पे मनन करोगे वो आपके शरीर को छोड़ देगा। For as long as you partake in the Lord's Supper, you declare His death till He comes. जैसे हम मसीह के प्रभु भोज में भाग लेते हैं, तो हम उसकी मृत्यु का जब तक वो ना आए प्रचार करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Father, we thank you that your body was broken for each and every one of us, Lord. पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपका शरीर हम में से हर एक के लिए तोड़ा गया था, And because your body was broken, our bodies are made whole. और क्योंकि आपका शरीर तोड़ा गया था, इसलिए हमारे शरीर पूरे भले चंगे हो गए। Your bones were out of your joints, your word declares it, O God. वचन कहता है आपकी जो हड्डी है अपने ढांचे से अलग हो चुकी थी। That's the reason everything, every part in our bodies are just in its place and will be in its place, Lord. उसी कारण हमारे शरीर में हर एक अवयव, हर एक हड्डी सही जगह पे है, सही तरह से काम कर रही है। And I give you praise that by your stripes we were already healed, Lord. और मैं आपको स्तुति प्रशंसा करता हूँ प्रभु कि आपके लगे कोड़ों के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। And we thank you also for the blood, और आपके लहू के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। the blood that has reconciled us back to you, वो लहू जिसने हमें आपसे वापस जोड़ दिया है, and the blood that has made us one with you. और वो लहू जिसने हमें आपके साथ एक बना दिया है। We give you praise and we give you the glory. हम आपको स्तुति और महिमा देते हैं प्रभु। We stand perfect, holy and righteous, and will continue to stay righteous and holy before you just because of the blood. हम आपके आगे सिद्ध ठहरते हैं, पवित्र ठहरते हैं, और ये हमारा ठहरना हमेशा के लिए है प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen.
आमेन। Church, let us partake. Thank you, Lord. हम भाग लेंगे। जय मसीह की सभी को। जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, ऑनलाइन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पहली बार हम आपका स्वागत करते हैं किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ में। आगे बढ़ते हैं और आगे आगे हम समृद्धि के वचन में बढ़ेंगे, साथ साथ में ही हम वचन में भी बढ़ेंगे। और छोटा सा एक बात कहना चाहती हूँ। जब भी मैं लोग मुझे पूछते हैं कि तुम कौन से चर्च जाते हो, अगर उनको पता चल जाता है कि मैं बिलीवर हूँ और मुझे पूछते हैं कि तुम कौन से चर्च जाती हो, तो मैं उनको बोलती हूँ किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ में जाती हूँ। और एंड देन वो बोलते हैं कि किंगडम कभी सुना नहीं है। मैंने बोला हाँ, न्यू मिनिस्ट्री है। तो मैं किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। एंड देन उसके बाद वो मुझे पूछते हैं कि वहाँ पे पास्टर कौन है। और जब मैं पास्टर का नाम बोलती हूँ तो उनके बहुत अजीब रिएक्शंस होते हैं। जब भी मैं बोलती हूँ कि हाँ वहाँ पर पास्टर गणेश रेड्डी है, हाँ पास्टर गणेश, मैंने बोला हाँ, है ना। प्रभु ने इंसान को बदला। बाइबल ये नहीं कहती कि हाँ जब तुम बदलते हो तो तुम्हारा नाम भी बदला जाए। आमेन। यस, प्रभु बस हृदय चाहता है। जब वो हृदय को बदलता है, पूरा इंसान बदलता है। और इसलिए हम कहते हैं कि वी आर बॉर्न अगेन। आमेन। यस। सो क्यों ना हम पास्टर जी से आज वचन में बढ़ेंगे, उनसे सुनेंगे और समृद्धि का वचन भी हम जानेंगे कि हमको समृद्धि में क्यों बढ़ना है और प्रभु का हृदय क्या है हमारे हमको वो प्रॉस्पेरिटी में देखने का। आमेन। सो मैं पास्टर जी को बुलाना चाहती हूँ। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Are we all happy in the Lord? क्या हम सब खुश है प्रभु में? Hallelujah. हालेलुया। Bible says there is fullness of joy in the presence of the Lord. वचन कहता है कि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Hallelujah. हालेलुया। So we are full of the Holy Ghost. तो हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया। Born again children of the Most High God. नया जन्म पाए हुए प्रभु यीशु मसीह के बेटे। The Holy Ghost dwells inside of every one of us. पवित्र आत्मा हम सब के अंदर रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Therefore we are full of joy. इसीलिए हम आनंद से भरे हुए हैं। The joy unspeakable and full of glory. तो ऐसा आनंद जिसके बारे में बयान नहीं किया जा सकता और जो महिमा से भरा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। We should always rejoice in the Lord. हमें प्रभु में हमेशा आनंद करना है। Amen. The Amen. joy of the Lord is our strength. प्रभु का आनंद है हमारी ताकत है। Hallelujah. हालेलुया। It is free. और ये मुफ्त है It comes from heaven. और ये स्वर्ग से आता है It is very free. और ये मुफ्त है। Hallelujah. Hallelujah. He paid the price. यीशु ने उसका कीमत चुका दिया है। Hallelujah. हालेलुया। We have to simply receive it. हमें सिर्फ उसका स्वीकार करना है। Hallelujah. हालेलुया। Sadness is very costly. और जो दुख है वो बहुत महंगा है, You have to pay for it. उसके लिए हमें दाम चुकाना पड़ता है। Hallelujah. Hallelujah. But the joy of the Lord, it is freely available. और प्रभु का जो आनंद है वो मुफ्त में मिलता है। Hallelujah. Hallelujah. Like the air around in the atmosphere, the love of joy, the joy of the Lord is available to everyone who believes. जैसे हवा हमारे लिए मुफ्त में मौजूद है, वैसे ही प्रभु का आनंद हमारे लिए मुफ्त में मौजूद है। Amen. So we Amen. have to choose that I will be rejoicing in the Lord always. इसलिए हमें चुनाव करना है कि मैं प्रभु में हमेशा आनंद करूंगा। Now we'll come to the word of prosperity. इसलिए हम समृद्धि का वचन पढ़ेंगे। 1 Timothy chapter number 6 and verse 17 says, 1 Timothy पहला तिमोथी का 6 अध्याय and 17 verse says like this. 17 वचन कहता है, Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God who gives us richly all things to enjoy. पहला तिमोथियुस का 6 अध्याय 17 वचन कहता है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। Hallelujah! हालेलुया। The riches of this world are uncertain.
इस संसार का जो धन है वो चंचल है। Hallelujah. हालेलुया। A rich person in the world can today is rich, tomorrow he can become bankrupt. जो दुनिया का धनवान व्यक्ति है वो आज अमीर होगा लेकिन कल वो दिवाले में आ सकता है। Hallelujah. हालेलुया। है ना? One more scripture we will read. और एक वचन हम देखेंगे, Proverbs 8:18. नीति वचन 8वां अध्याय 18वां वचन। Riches and honor are with me. ये वचन कहता है धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, Enduring riches and righteousness. वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। Hallelujah. हालेलुया। The riches that we receive from God is enduring riches. जो धन हमें परमेश्वर से मिलता है वो सनातन के लिए रहने वाला It धन is है from generation to generation. और वो पीढ़ियों पीढ़ियों तक रहता है। Hallelujah. हालेलुया। But the riches of this world, it is uncertain. लेकिन जो इस दुनिया का धन है वो चंचल है, So when we give to the Lord, इसलिए हम जो प्रभु को देते हैं so we get this enduring riches in our life. इसलिए तब हमें ये ठहरने वाला जो धन है वो हमें मिलता है। We will never be poor. हम कभी गरीब नहीं होंगे, Because Bible says that Jesus Christ became poor for us so that we will become rich in him. इसलिए क्योंकि वचन कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बना ताकि हम उसकी गरीबी के द्वारा धनवान बने। Hallelujah. Hallelujah. And his richness endures forever. और उसकी अमीरी जो है वो सनातन के लिए रहती है। This richness is not coming from the world, it comes from the kingdom of heaven. ये अमीरी जो है वो दुनिया से नहीं आती, वो प्रभु के राज्य से आती है। Hallelujah. हालेलुया। The favor of God is upon every born again child of the living God. प्रभु की कृपा हर एक नया जन्म पाए मसीह के ऊपर होती है। Hallelujah. New doors will be opening for you. नए दरवाजे आपके लिए खोले जाएंगे। Hallelujah. The riches of this wicked, they are for you. और जो दुष्टों का जो धन है वो आपके लिए है। Hallelujah. हालेलुया। So those people, they are working, laboring day and night only to give us. और वो जो लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं, वो हमें देने के लिए काम कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। God has given them labor, that they are laboring day and night so that they can accumulate the wealth for the righteous. प्रभु ने उनका बहुत सारा काम दे दिया है ताकि वो बहुत सारा काम करके बहुत सारा धन जमा करके जो नीतिमान है उनको दे। Hallelujah. हालेलुया। Because the world and everything in it belongs to God, our क्योंकि God. जो दुनिया है, धरती है और उसके अंदर जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है And he gives it to his children. और वो सब अपने बच्चों को देता है। Hallelujah. Hallelujah. So we are by default rich people. इसलिए हम पहले से ही धनवान लोग हैं। Hallelujah. When we Hallelujah. were born again, जब हमारा नया जन्म हुआ था we were born in rich family. हम अमीर घराने में जन्म ले चुके हैं, We are born in that royal family हम उस राज घराने में जन्म ले चुके हैं where the road is of gold. जहाँ पे रास्ते सड़कें जो है वो सोने की है। Hallelujah. हालेलुया। So never think that you're poor. तो कभी ऐसा मत सोच रही कि आप गरीब हो। Always imagine in your imagination that you are the richest person on this planet earth. इसलिए हमें हमारे कल्पना में देख रहे हैं हमेशा कि हम इस धरती पे सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति हैं। Hallelujah. Hallelujah. Because what we have, the world doesn't have. क्योंकि जो हमारे पास है वो दुनिया के पास नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। And the richest people of this world, they are wretched and they are naked actually. क्योंकि ये जो दुनिया के जो धनवान व्यक्ति है वो टूट चुके हैं, वो नंगे हैं। Hallelujah. Hallelujah. We have been clothed by the robe of righteousness. और हमें नीति मातवा का जो चोगा है वो हमें पहनाया गया है। Hallelujah. हालेलुया। We have that royal priesthood. और हमें वो याजक पद मिल चुका है। Hallelujah. So we Hallelujah. all belong to that royal family. इसलिए हम वो राजघराने में से आते हैं। So if you believe, if you think these things in your mind, क्योंकि जब आप इन सब बातों पे अपने मन में मेडिटेट करोगे, मनन करोगे, you will manifest that thing in your life. तो वो चीजें आपके जीवन में प्रकट होने लगेगी। Hallelujah. Hallelujah. Bible says as a man thinks in his mind, so is he. क्योंकि वचन कहता है जैसा एक व्यक्ति अपने बारे में सोचता है मन में वैसा ही वो बन जाता है। Hallelujah. Hallelujah. So think according to the scriptures. क्योंकि इसलिए हमें वचन के अनुसार सोचना है। Hallelujah. हालेलुया। One more scripture we will read. और एक वचन हम देखेंगे, Proverbs 13:22. नीति वचन 13वां अध्याय 32वां वचन। Here it says, a good man leaves an inheritance for the children's children. 22वां वचन ये कहता है 13:22 भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, Amen. But sinners' wealth is stored up for the righteous. परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। Hallelujah. हालेलुया। They are storing it for us. वो हमारे लिए जमा कर रहे हैं, So we did not have to store for ourselves.
तो हमें हमारे लिए जमा करने की जरूरत नहीं है। Hallelujah. God has given them that job to store for us. वो काम प्रभु ने उनको दिया है हमारे लिए जमा We करे। have given the job to store in heaven. हमें वो काम दिया गया है कि हम स्वर्ग में धन जमा करें। Hallelujah. Hallelujah. And we should store up our treasure in heaven. हमें हमारा जो धन है वो स्वर्ग में जमा करना And है। these people will store wealth for us on this earth. और ये जो लोग हैं वो हमारे लिए धन जमा करेंगे यहाँ धरती पर। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What a blessing it is. ये कितना बड़ा आशीर्वाद है। Amen. So we should think like this always. इसलिए हमें ऐसा ही विचार करना है हमेशा। Amen. आमीन। Hallelujah. So this was the word of God for prosperity. ये प्रभु का वचन था समृद्धि के लिए। And I believe that the Holy Ghost has stirred every one of us. और मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा ने सबको चलाया है। Hallelujah. So as the Lord leads you, you can sow into the kingdom of God. जैसे आपको पवित्र आत्मा चलाता है प्रभु के राज्य में बो सकते हो। And that the fruit of that will be for eternity to you. और इसका जो फल है वो सनातन काल के लिए आपका होगा। Amen. आमीन। Now we'll come to the word. हम वचन में जाएंगे। Uh, we'll come to James chapter number 1. याकूब की पत्री पहला अध्याय में हम जाएंगे। Here, verse 2 says, दूसरा वचन कहता है, My brethren, count it all joy when you fall into various trials. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, Knowing that the testing of your faith produces patience. यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। But let patience have its perfect work, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, that you may be perfect and complete, lacking nothing. कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम किसी बात की घटी न रहे। Hallelujah. हालेलुया। Bible says that my brethren, count it all joy when you fall into various trials. वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। That means a believer is empowered to count it all joy. इसका मतलब है जो नया जन्म पाया मसीह है उसको सामर्थ मिल चुका है कि वो परीक्षाओं में आनंद करे। Hallelujah. हालेलुया। It is again a choice. We choose. ये एक चुनाव है, हमें चुनाव करना पड़ता है। Hallelujah. That I will be joyful in this testing and trial. हमें चुनाव करना पड़ता है कि इस परीक्षा में मैं आनंद से भरा हुआ रहूंगा। Hallelujah. But the हालेलुया। trials are not joyful. लेकिन जो परीक्षा होती है वो खुशी देने वाली नहीं होती है। Hallelujah. हालेलुया। But we have to go through it. लेकिन हमें उसके द्वारा जाना पड़ता है। These trials are not from God. और ये परीक्षा जो है परमेश्वर से नहीं आती है, This is from the world. ये दुनिया से आती है। Because in the world, the wicked is working every day and night. क्योंकि दुनिया में जो है वो दुष्ट जो है वो दिन रात काम कर रहा है। The people who do not know God, जो लोग दुनिया को परमेश्वर को नहीं जानते, the devil works through them. शैतान उनके द्वारा काम करता है। Hallelujah. And they try to persecute the children of God. और वो प्रयत्न करते हैं कि जो प्रभु के बच्चे हैं उनका मन फिराए। Hallelujah. हालेलुया। But the children of God can rejoice. लेकिन परमेश्वर के जो बच्चे हैं वो आनंद कर सकते हैं, They can count it all joy. वो आनंद कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And because our faith is being tested. क्योंकि हमारे विश्वास परखा जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Whatever if you have been visited to any company, any industry, जब भी आप किसी कंपनी या इंडस्ट्री जो है वहाँ पे आप भेंट देते हो, for example, if you visit a industry where car is manufactured, अगर आप जाते हो ऐसे कंपनी में जहाँ पे कार बनाई जा रही है, the car is first designed, पहले कार का डिजाइन बन जाता है, रूप बनाया जाता है, then the prototype is manufactured, उसका एक नमूना बनाया जाता है, प्रोटोटाइप then बनाया that जाता है, prototype is tested और वो नमूना जो होता है उसकी परीक्षा होती है, टेस्टिंग होती है, for the horsepower and everything that is designed for. उसका पावर कितना है, हॉर्स पावर कितना है, वो सब चेक किया जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Because without the testing, they will never approve it. क्योंकि जो परीक्षा होती है उसके बिना वो उसको ऐसे कह नहीं सकते कि ये अभी अच्छा बन चुका है। Hallelujah. हालेलुया। Same way, when we have believed in Jesus Christ, इसी तरह से जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, our faith is to be tested. हमारे विश्वास परखा जाना चाहिए Whether that faith is genuine or it is just for a brief period of time. कि वो विश्वास जो है वो सच्चा है या थोड़े टाइम के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। So, in the testing time, इसीलिए परीक्षा के काल में the real faith comes up.
सच्चा विश्वास है वो उभर के आता है। That's why we should rejoice in whenever we fall in trials and testings. इसलिए हमें जो परीक्षा आती है तो हमें आनंद मनाना है। Hallelujah. हालेलुया। And we have believed in the living God. हमने जीवित परमेश्वर पे विश्वास किया We है। have not believed any philosophy or any democracy. We have believed in the living God. हमने किसी मनधरण कहानी में विश्वास नहीं किया या लोकतंत्र में विश्वास नहीं किया, हमने जीवित परमेश्वर में विश्वास किया। We believe in the living God who is alive forevermore. हम उस परमेश्वर में विश्वास करते हैं वो सनातन के लिए जीवित है, Hallelujah. Who Hallelujah. died for our sins and on the third day he rose again. जो हमारे पापों के लिए मर गया और तीसरे दिन जी उठा। So we belong to him. हम उसके हो चुके हैं। So he also was tested in everything. उसकी भी परीक्षा हुई थी हर एक भाग में। Hallelujah. हालेलुया। But he passed every test. लेकिन वो हर परीक्षा में सफल होते आगे चला गया And we belong to him. और हम उसके हैं। And Bible says that we are more than conquerors in Christ Jesus. और वचन कहता है हम जयवन से भी बढ़कर है प्रभु यीशु So we मसीह में। also can rejoice in everything that comes in our way. इसीलिए हम भी हमारे राह पे जो कुछ भी आता है उसमें हम आनंद मना सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। When you experience the love of God, जब हम प्रभु का आनंद प्रेम महसूस करते when हैं, you know that how much God loves you, जब हमें पता होता है कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है, when you are rooted and grounded in his love, जब हम उसके प्रेम में हमने जड़ पकड़ ली है, you can count it all joy. हम उस सारे परीक्षाओं को आनंद से ले सकते हैं। But when you are not experiencing his love, लेकिन जब आप उसका प्रेम का अनुभव नहीं कर you रहे, cannot count it joy. हम उसमें आनंद नहीं मना सकते, It will be grievous to you. वो हमारे लिए बड़ा दुखदाई बन जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. That's why we need to be feeding every day on his love. इसलिए हमें उसके प्रेम पे हर दिन उसके प्रेम को चखते रहना है। Just now we sang that song that घुटनों से ऊपर कमर से भी ज्यादा. Amen. यस, So we should be that much immersed in the Lord. उतना हमें प्रभु के प्रेम में डूबना है। Hallelujah. हालेलुया। If we are only up to ankle depth, जब अगर हम सिर्फ एड़ियों तक ही डूबे हैं, we cannot count it all joy. तब हम आनंद कैसे मनाएंगे? But the more we immerse ourselves in the Lord, in His जैसे हम love. प्रभु में जितना ज्यादा डूब जाते हैं, See, when you are ankle deep, जब हम एड़ियों तक डूबे हुए रहते हैं, you can control yourself. आप अपने आप को काबू में रख सकते हो। And when you are knee deep, जब आप घुटनों तक डूब जाते हो, it becomes a little difficult to control yourself. थोड़ा मुश्किल हो जाता है खुद पर But काबू when you रखना। are up to your waistline, जब आप कमर से भी ऊपर आ जाता है, you cannot control yourself. तब आप अपने आप को काबू नहीं कर पाते Then हो। He controls you. तो वो आपको काबू करता है। Hallelujah! हालेलुया। The more we immerse ourselves in His love, जितना ज्यादा हम प्रभु के प्रेम में डूब जाते हैं, He takes over. वो हम पर नियंत्रण पा लेता है। Once He takes over, जैसे ही वो हम पर काबू करता है, then He inside of you, He will count it all joy. तो वो हमारे अंदर से खुशी उत्पन्न करेगा। Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! Hallelujah. Because He is gone through it. क्योंकि वो इस परीक्षा से जा चुका है He पहले, knows everything. उसे सब पता है। Hallelujah. So Hallelujah. our job is to just immerse in His love. इसलिए हमारा काम यही है कि उसके प्रेम में डूब जाना है। But if we are only in ankle deep, अगर हम सिर्फ पैर तक डूबे हुए we हैं, can turn and go backward. तो हम मुड़कर पीछे वापस जा सकते हैं। But when you are up to waistline, लेकिन अगर हम कमर तक डूबे हैं, it is very difficult for you to turn back and तो go. पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। You have to go ahead only. तो आपको आगे ही जाना पड़ेगा। Hallelujah. Hallelujah. So the more we give ourselves to God, तो जितना ज्यादा हम खुद को परमेश्वर को देते हैं, He'll work in us. वो हम में कार्य The करता है। word of God is alive and powerful, Bible says. प्रभु का वचन जो है जीवित है, सामर्थ्यशाली वचन कहता है। When we receive the word of God with a noble heart, जब हम प्रभु का वचन अच्छे मन से लेते हैं, that word starts working in us. तो वो वचन जो है हमारे अंदर काम करने लगता है। It starts changing everything that is there in us. वो हमारे अंदर जो कुछ भी है सबको बदलने लगता है। Hallelujah. हालेलुया। And there is an effortless change in our character, in everything. और हमें वो हमारे अंदर एक बदलाव आता है जिसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। Hallelujah. हालेलुया। And we have to just receive the word of God with a noble heart. हमें सिर्फ हमारे प्रभु के वचन को अच्छे हृदय से लेना है, And the rest, everything the word does. और सब बाकी सारा काम प्रभु का वचन करता The है। Holy Ghost takes over.
प्रभु का आत्मा जो है वो हमारे ऊपर आ The जाता है। Holy Ghost empowers us from the inside out. पवित्र आत्मा हमें अंदर से सामर्थ देता है। Hallelujah. Hallelujah. We are strengthened by the power of the Holy Ghost in the inner man. हम पवित्र आत्मा के सामर्थ से अंदर के मनुष्य के द्वारा सामर्थशाली बन जाते हैं। Hallelujah. 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 हालेलुया। The Holy Ghost has been given to us as an helper. पवित्र आत्मा जो है हमें मददगार के रूप में दिया गया And है। it helps us वो हमें मदद करता है to believe in Jesus Christ. कि हम पवित्र यीशु मसीह में विश्वास करें। Hallelujah. We cannot believe. हम विश्वास नहीं कर सकते। There is difference between faith and believing. विश्वास करना और किसी में भरोसा करना इसमें बहुत फर्क Many है। people, they say, I believe, I believe, I believe. बहुत लोग बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, But they do not know what they are believing. पर उन्हें पता ही नहीं वो किस बात पे विश्वास कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। The Holy Ghost takes the word of God and it reveals the truth to us. पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का वचन लेता है और उसके अंदर से सच्चाई सत्य हमें प्रकट करता है। And then when our spiritual eyes are opened by the Holy Ghost, then we say, yes, I believe. और तब जाके हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है और तब हम कहते हैं कि हाँ अब मैं विश्वास करता हूँ। That word becomes alive in us. वो जो वचन है हमारे अंदर जीवित हो जाता है। Hallelujah. And we say, I know that Jesus is Lord. तब जाके हम कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ यीशु ही प्रभु है And I will receive him as my Lord and Savior. और मैं उसे मेरा तारनहार और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ। The Holy Ghost makes the word alive in us. पवित्र आत्मा जो है वो हमारे अंदर वचन को जीवित करता है। Without the Holy Ghost, we cannot know the word of God. पवित्र आत्मा के बिना हम वचन को कभी नहीं जान सकते। The word will just fall like on a stony ground. तो बिना पवित्र आत्मा के ऐसा होगा कि वचन जो है वो पथरीली जमीन पे गिर रहा है ऐसे। Hallelujah. Hallelujah. But when the Holy Ghost takes over and when we receive the word with a noble heart, जब पवित्र आत्मा काम करने लगता है और हम प्रभु का वचन अच्छे हृदय से स्वीकार करते हैं, the power of God is released in our life. प्रभु का जो सामर्थ्य हमारे अंदर काम करता है। The inner man grows stronger and stronger day by day. हमारा जो अंदरूनी मनुष्य है वो दिन ब दिन सामर्थ्यशाली बनता जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Then we can rejoice every time in the Lord. तो हम तब जाके हम प्रभु में हर दिन आनंद मना सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Bible says that our outer man is perishing day by day. वचन कहता है कि हमारा जो बाहरी मनुष्य है वो दिन ब दिन नाश होते जा रहा है, But the inner man is growing stronger and stronger day by day. लेकिन जो अंदरूनी मनुष्य है वो दिन ब दिन सामर्थ्यशाली होता जा रहा है। Hallelujah. Because Hallelujah. that inner man is the real man. क्योंकि जो अंदरूनी मनुष्य है वो ही सच्चा मनुष्य है। The outer man is not the real one. बाहर का जो मनुष्य बाहर का रूप है वो सच्चा नहीं है। So the inner beauty, inner man is the one who is real. अंदरूनी मनुष्य जो है वो सच्चा मनुष्य So है। we should be strengthened in the inner man. इसलिए हमें अंदरूनी मनुष्य हमें सामर्थ्यशाली बनना Then we है। can believe in God in every situations. तब जाके हम प्रभु परमेश्वर पे हर एक परिस्थिति में विश्वास कर We सकते can hold on to his promises. हैं। तब जाके हम उसके वादों को पकड़ सकते हैं। Hallelujah. Nothing can change our thinking कुछ भी हमारा विचार बदल नहीं सकता, because we are convinced and we are convicted in our heart that the word of God is truth. क्योंकि हमें पता चल चुका है, हमारे दिल में हमने कबूल कर लिया है कि प्रभु का वचन ही सत्य है। Hallelujah. हालेलुया। Once the believing is established in your heart, जैसे ही विश्वास करना हमारे अंदर ये हो चुका है, पकड़ लिया है हमारे दिल में, hallelujah, then you start living by faith. तब जाके हम विश्वास से जीने लगते हैं। Belief is inside. भरोसा करना जो है वो अंदर होता है, Believing is inside reality. भरोसा करना जो होता है वो अंदर की सच्चाई पे होता है। Faith is the demonstration of what you're believing inside. विश्वास जो है वो हमारे अंदर हम जो विश्वास करते हैं उसका प्रतीक है। You will demonstrate what you're believing inside. You will work it out. तब जाके हम जो विश्वास कर रहे हैं उसके अनुसार हम काम करने लगेंगे। Hallelujah. हालेलुया। And as a man thinks in his heart, so is he. जैसा मनुष्य अपने अंदर विचार करता है वैसा ही वो बन जाता है, He will walk like that. वो वैसे ही चलेगा। So we should check what we are believing inside of इसलिए us. हमें बार बार टटोलना है कि हम क्या विश्वास कर रहे हैं। What I'm believing, is it from the word of God or is it from my emotions? Is it from the world? What is the source of what I'm believing? इसलिए हमें चेक करते रहना है कि जो मैं विश्वास कर रहा हूँ क्या ये प्रभु के वचन से है, क्या ये जो दुनिया से आ रहा है, क्या मेरे खुद की भावनाओं से आ रहा है, हमें चेक करना है। Hallelujah. Am I believing some traditions, dead religion? क्या मैं कुछ परंपराओं को भी विश्वास कर रहा हूँ जो पीढ़ियों से चला आ रहा है उस पर विश्वास कर रहा हूँ, Or am I believing in the living God who loves me so much that he died for me and rose again on the third day?
या फिर मैं उस परमेश्वर पे विश्वास कर रहा हूँ जो मुझसे जिसने प्रेम किया, मेरे लिए जान दी, तीसरे दिन जी उठा। Hallelujah. हालेलुया। If I'm truly believing in Him, अगर मैं सच में उस पे विश्वास करता हूँ I will obey Him. तो मैं उसकी आज्ञा मानूंगा, I will obey every commandments of Him. उसकी हर एक आज्ञा को मैं One मानूंगा। scripture is coming to my mind right now. एक वचन मेरे मन में आ रहा है अभी, Psalms भजन संहिता 112, I guess. Yeah. Psalms 112. भजन संहिता 112 Yeah. First verse. पहला वचन, Praise the Lord. या की स्तुति करो। Blessed is the man who fears the Lord, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, who delights greatly in His commandments. उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Blessed is the man who fears the Lord, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है and he delights greatly. His delight is greatly in the commandments of the और Lord. उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। Hallelujah. Hallelujah. Today, where is our delight? आज हमारा प्रसन्नता कहाँ पे है? If we are feeding on His love, अगर आप उसके प्रेम को चख रहे हो we will love His word. तो हम उसके वचन से प्रेम करेंगे, We will love His commandments. उसकी आज्ञाओं से प्रेम We करेंगे, will greatly delight in His commandments. उसकी आज्ञाओं में हम अति प्रसन्न And रहेंगे। the promises that is there for doing this, और ये करने के लिए एक वचन दिया है परमेश्वर ने। His descendants will be mighty on earth. दूसरा वचन कहता है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, The generation of the upright will be blessed. सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, Wealth and riches will be in His house, उसके घर में धन संपत्ति रहती है, and His righteousness endures forever. उसकी धार्मिकता सदा बनी रहेगी। Hallelujah. हालेलुया। The blessed is the man who fears the Lord, who honors the Lord. यहोवा का जो भय मानता है ऐसा मनुष्य आशीर्वादित है। Hallelujah. Hallelujah. He is greatly delighting in the every commandments of the Lord. वो परमेश्वर के हर एक आज्ञा में अति प्रसन्न रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Because the Holy Spirit has empowered him from inside. क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको अंदर से वो सामर्थ दिया है। Hallelujah. Hallelujah. When our inner man is strong inside, जब हमारा अंदरूनी मनुष्य सामर्थ्यशाली बन जाता है we delight to do the will of God. तो हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में खुशी मिलती है। Hallelujah. हालेलुया। We do not do our own will, हम खुद की इच्छा नहीं करते and we will do His will. We delight in doing His will. और हम उसकी इच्छा पूरी करने में आनंदित रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। And riches and honor will be there in our life. और धन संपत्ति आदर जो है वो हमारे जीवन में हमेशा रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। है ना? These are the promises that follows, है ना, to everyone who does this first step. ये सारे आशीष उनके पीछे चलते हैं जो ये पहला वचन में जो लिखा है वो करते हैं। When we know how much He loves us, जैसे हम जान जाते हैं कि वो हमसे कितना प्रेम we करता है, will, our heart will love Him. You know? हमारा हृदय जो है उससे प्रेम करने लगेगा, Hallelujah. Because His love transforms us. क्योंकि उसका प्रेम जो है हमें बदल देता है। Bible says when we were yet sinners वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे and without strength, और हम सामर्थहीन थे, right time He died for us. उसी समय उसने हमारे लिए जान दी। Hallelujah. हालेलुया। No one dies for a sinner. और पापी मनुष्य के लिए कोई जान नहीं देता, But God demonstrated His love for every one of us. लेकिन परमेश्वर ने अपना प्रेम इसी तरह से दिखाया। Hallelujah. हालेलुया। And when you receive the love, when you experience His love day and night, जब उसके प्रेम को हम दिन रात अनुभव करने लगते हैं you will delight greatly in doing His will. तब उसकी इच्छा पूरी करने में हम अति प्रसन्न रहेंगे। Hallelujah. And when you are doing His will, और जब हम उसकी इच्छा कर रहे हैं you will be prosperous in every area of your life. तब आप हर एक जीवन में समृद्धि पाओगे, You will be free. आप आजाद रहोगे You will be rejoicing with the आप- joy unexpressible and full of glory. और जो बयान नहीं कर सकते ऐसे आनंद से आप आनंदित रहोगे। Hallelujah. हालेलुया। And we have to give ourselves entirely to God. इसलिए हमें खुद को पूरी तरह से परमेश्वर को देना है। Hallelujah. Every day. It is not one day ka work. ये एक दिन का काम नहीं, ये हमें हर दिन करना पड़ता है। Every day. We should not put confidence in our flesh. हमें हमारे शरीर में विश्वास नहीं करना है। Paul says that I do not put confidence in my flesh. पौलुस कहता है मैं मेरे शरीर पे कोई भी भरोसा नहीं, आशा नहीं रखता हूँ। Even though if I could. वो कहता है मैं कर सकता हूँ ऐसा, But he says that I do not put confidence in my flesh. लेकिन वो कहता है मैं इससे मेरे शरीर में कोई आशा नहीं रखता हूँ। But I count it all rubbish, he says. और वो कहता है ये सारी बातों को मैं कूड़ा मानता हूँ That I may know Christ.
ताकि मैं मसीह को जानूं। Hallelujah. हालेलुया। है ना? He says, I forget all the past things and I look forward to the glorious hope. और वो कहता है कि मैं पुरानी बातों को भूल चुका हूँ, मैं आने वाली महिमा की आशा को देखता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। है ना? Bible says that we are pilgrims on this earth. और बाइबल कहती है कि हम इस धरती पे एक Yatri. यात्री है। Yes. Hallelujah. We do not belong to this world. हम इस दुनिया के नहीं है। We are coming back with our Lord Jesus Christ on the same earth. हम हमारे प्रभु यीशु के साथ वापस आ रहे हैं इस धरती पे। And we are going to reign with him 1,000 years. और उसके साथ हम 1000 साल के लिए राज्य करने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। So Lord has kept us here on this earth to display and demonstrate his power. और प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर इसलिए रखा है ताकि हम उसके सामर्थ और प्रेम का प्रचार कर सके। Hallelujah. हालेलुया। है ना? We are ambassadors. Bible said that we are ambassadors of Christ. हम इस दुनिया में प्रभु के राजदूत. राजदूत है। Yes. Hallelujah. Hallelujah. है ना? We do not belong to this world. है ना? Wherever we are his ambassadors, Bible says. हम इस दुनिया के नहीं है, हम जहाँ कहीं भी है इस दुनिया में हम उसके राजदूत है। Hallelujah. We are on a mission. हम एक मिशन पे आए हैं। Hallelujah. To destroy the kingdom of darkness and to advance the kingdom of God. तो जो अंधकार का राज्य है उसको नष्ट करने हम आए हैं और प्रभु का जो राज्य है उसको हम बढ़ाने आए हैं। And the Holy Ghost is given to us and it is empowering every one of us through the word of God. और पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है और वही पवित्र आत्मा हम सबको प्रभु के वचन के द्वारा सामर्थ दे रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Bible says that we are more than conquerors in Christ Jesus. वचन कहते हैं कि हम जयवन से भी बढ़कर है प्रभु So we यीशु should मसीह में। believe that reality in us. तो वो सत्य पे हमें विश्वास We करना है। cannot be defeated by anything of the world. हम दुनिया की किसी भी बात से हार नहीं सकते। The devil is underneath our foot. शैतान जो हमारे पैरों तले है। God has already given us power over all the powers of the enemy. प्रभु ने पहले से ही हमें शैतान के सारी सामर्थ पे अधिकार दे दिया है। Hallelujah. हालेलुया। We can destroy every lies of the enemy. हम शैतान के सारे झूठ को नष्ट कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We are the children of the Most High God. हम परम परमेश्वर की संतान है। Hallelujah. Born Hallelujah. again by the incorruptible word of the living God. हमने नया जन्म पाया है जो अविनाशी परमेश्वर के बीज के द्वारा हम जन्म Hallelujah. पाए। 1/3 of our salvation is complete. 1/3 जो उद्धार है हमारा हो चुका है। Hallelujah. हालेलुया। We are as he is, so are we in this world. जैसा वो है वैसे ही हम है इस दुनिया में। Hallelujah. We are Hallelujah. wall to wall full of the Holy Ghost. हम पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। Just let us give over to the Holy Ghost. इसलिए हमें सब कुछ पवित्र आत्मा के हाथ में दे Let the देना है। Holy Ghost control our life. पवित्र आत्मा को हमारे जीवन का नियंत्रण देना है Hallelujah. He will Hallelujah. lead us in all the truth. और वो हमें हर एक सच्चाई में He चलाएगा। will remind us the word spoken by our Lord Jesus Christ. वो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बोली हुई हर एक बात याद He will दिलाएगा। give us good doctrine वो हमें सच्ची शिक्षा देगा which will set us free. जो हमें आजाद करेगा। Hallelujah. Hallelujah. The doctrines of demons will bring you into bondage. और जो दुरात्माओं की शिक्षा है वो आपको बंधन में लाएगी। But the truth, the doctrine that comes from godliness, it will set you free. और जो शिक्षा जो है वो परमेश्वर से आती है वो आपको आजाद कर देती है। Hallelujah. Hallelujah. The word of God is a bread coming down from heaven. परमेश्वर का जो वचन है वो स्वर्ग से आने वाली रोटी है Hallelujah. It gives life and life in abundance. और वो हमें जीवन देता है बहुतायत में। Hallelujah. Hallelujah. The word, Jesus said, the word that I speak to you, they are spirit and they are life. और वचन यीशु कहता है जो मैं वचन कहता हूँ तुमसे वो आत्मा है वो जीवन है। Hallelujah. That the flesh profits nothing. यीशु कहता है कि शरीर से कोई लाभ नहीं है। Hallelujah. The Hallelujah. spirit, it is the spirit that gives life. जो आत्मा है वही जीवन देता है And the word of God is spirit. और जो वचन है वो आत्मा है। It is the manna that every day comes fresh for us. और ये वो मन्ना है जो हर दिन हमारे लिए आता है। Hallelujah. हालेलुया। When we take part in this manna, और जब हम इस मन्ना में भाग लेते हैं our inner man grows stronger and हमारा stronger. हमारा अंदरूनी मनुष्य है वो सामर्थ में बढ़ता जाता है। Hallelujah. Hallelujah. We can love anyone. और हम किसी से भी प्रेम कर We सकते can हैं। love enemies. हम हमारे शत्रुओं से प्रेम कर We can सकते हैं। forgive our enemies. हम हमारे शत्रुओं को माफ कर सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Because our inner man is stronger क्योंकि day हमारा by day. क्योंकि हमारा अंदरूनी मनुष्य हर दिन सामर्थ में बढ़ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus himself showed that. और यीशु मसीह ने खुद ये करके दिखाया। He chose 12 and one of them was going to betray him. उसने 12 चेले चुने लेकिन उसमें से एक उसको धोखा देने वाला था।
He was going to sell him. वो उसे बेचने वाला था, And Jesus knew it. यीशु को पता था, But Jesus it never bothered Jesus. और इससे यीशु को कभी फर्क नहीं पड़ा, Because he was filled with the love of Father. क्योंकि वो पिता के प्रेम से भरा हुआ था। Hallelujah. He was feeding on the love of his Father. वो पिता के प्रेम को रोज अनुभव कर रहा था। Hallelujah. Same way Hallelujah. when we experience the love of Father every day. इसी तरह से जब हम परमेश्वर के प्रेम को रोज अनुभव करते हैं, If somebody will slap you on one cheek, he will show the other. तब जाके अगर किसी ने आपको एक गाल पे थप्पड़ मारा तो आप दूसरा गाल आगे And कर that is दोगे, automatically. और ये ऑटोमेटिकली होगा। You will never do that. हम never- कभी नहीं कर सकते ऐसा। And the Holy Ghost will make you to do that. पवित्र आत्मा हमें ये करने Your में सामर्थ्य nature, देगा। we are partaken of a divine nature. हम प्रभु के स्वभाव में भाग लेंगे। Hallelujah. Hallelujah. And because of this precious promise which has been given to us, through these promises we partake of the divine nature. वचन कहता है कि जो ये अनमोल वचन हमें दिए गए हैं, उसके द्वारा हम प्रभु के स्वभाव को अपने अंदर ला सकते हैं, Hallelujah. And we escape the corruption that is in the world through lust. और तब जाके हम दुनिया में जो भ्रष्टपना है, जो भी करप्शन आया है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And so we possess that divine nature inside of us. वो प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर है। The Holy Ghost makes it real to us. पवित्र आत्मा हमारे लिए ये बातें सच करता है, Hallelujah. We can Hallelujah. easily love everyone because God loved us. और तब जाके हम हर एक से प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमसे प्रेम किया He है। has forgiven us. उसने हमें माफ कर दिया है, We can also forgive. तब जाके हम भी is माफ कर सकते हैं। That easy. ये इतना आसान है। Hallelujah. Hallelujah. Bible says the love of God constrains us. और वचन कहता है कि जो परमेश्वर का प्रेम है वो हमें विवश करता है। Hallelujah. Hallelujah. Not to go against His will. विवश करता है कि हम उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं जाए। Hallelujah. Hallelujah. Because the love of God, hallelujah, has been poured in our heart by the Holy Ghost. क्योंकि प्रभु का जो प्रेम है हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा डाल दिया गया है। This is who we are. यही हम लोग हैं। We are the children of love. हम प्रेम की संतान है। Hallelujah. God is love. परमेश्वर प्रेम है, And the one who loves, he knows God. और जो प्रभु को प्रेम करता है वो प्रभु को जानता है। Hallelujah. हालेलुया। We love him because he first loved. He showed his love on the cross. हम प्रभु से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। Hallelujah. हालेलुया। And when we are feeding on his love, और जब हम उसके प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, nothing will bother you. कुछ भी हमें फर्क, किसी भी बात का हमें फर्क नहीं पड़ेगा, Because we do not belong to this earth. क्योंकि हम इस दुनिया के नहीं है। है ना? ये सियोन देश is our देश. यस, सियोन देश जो है वो हमारा देश है। Hallelujah. We are हालेलुया। है ना, रहते हैं हम परदेश. यस, Hallelujah. हालेलुया। है ना, यहाँ पर enduring rich नहीं है, लेकिन वहां पर है. यस, Amen. Hallelujah. So we should be focused on the things which are above. इसलिए हमें जो चीजें ऊंची है, ऊपर है, उन पे हमें ध्यान लगाना है। Set your affection on the things which are above. इसलिए हमें हमारा मन जो है वो स्वर्ग की बातों पे लगाना है। Then you will always be full of joy. तब जाके आप हमेशा आनंद से भरे हुए Because रहेंगे, those things will never change. क्योंकि वो बातें कभी नहीं बदलती। The validity never expires. उसका जो जीवन काल है वो कभी खत्म नहीं होता। Hallelujah. हालेलुया। Things on the earth are perishable. दुनिया की जो चीज है वो नष्ट होने वाली है, There is expiry date to everything. उसका एक विनाश का समय है। Hallelujah. हालेलुया। That's why if we set our mind and heart on the things of the earth, इसलिए अगर हम दुनिया की वस्तुओं पे हमारा दिल लगाते हैं, we have to go in seasons of depression and joy. Depression, कभी खुशी, कभी गम. तब जाके हमें कभी आनंद होता है, कभी दुख होता है, तो हमारा जो जीवन है हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। Hallelujah. But Hallelujah. when you set your heart and mind on the things which are above, लेकिन अगर हमने हमारा जो दिल है वो परमेश्वर की बातों पे लगा दिया, your joy will be constant 24/7. तो आपका जो आनंद है वो हमेशा सेम रहेगा, Come कभी what बदलेगा may नहीं। in your life. कुछ भी आपके जीवन में हो। Hallelujah. हालेलुया। So do we all want to rejoice with the joy inexpressible and full of glory? तो क्या हम उस आनंद में जो हमेशा बना रहता है उसमें आनंद करना चाहते हैं? So only set your heart and mind on the things which are above. तो हमें हमारा जो मन है वो स्वर्ग की बातों पे लगाना है, Because we belong to there. क्योंकि हम वहां से आते हैं। We are born from above. हमने स्वर्ग से जन्म पाया है, And we are seated in the heavenly places with Christ Jesus our Lord. और हम स्वर्गीय स्थान में हमारे यीशु मसीह के साथ बैठे हैं। Hallelujah. Those things should attract our heart.
उन बातों पे हमारा मन लगना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Not the things of this world. इस दुनिया के बातों पर नहीं, The world is passing away, ये जो दुनिया है उसका विनाश होने जा रहा है, and the lust of it. और जो वासना है उसका भी नाश होने जा रहा But है। he who does the will of God shall abide forever. लेकिन जो प्रभु की इच्छा करता है वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। What a joyful and powerful life God has given us. कितना आनंद से बना और सामर्थ से भरा जीवन हमें दिया Hallelujah. प्रभु What ने। a blessing it is to be in the presence of the Lord ये always. कितना बड़ा आशीर्वाद है प्रभु की उपस्थिति में हमेशा रहना। Hallelujah. हालेलुया। There is great delight when you do the will of God. प्रभु की इच्छा पूरी करने में बहुत आनंद मिलता है, Because his will for us is only to prosper us, क्योंकि उसकी जो इच्छा है हमारे लिए वो है कि हम समृद्धि में रहे। to give us expected end. तो हमें वो एक अच्छा अंत देना चाहता है। Hallelujah. He Hallelujah. wants to give us everything that we need. वो हमें सब कुछ देना चाहता है, उन सारी चीजों की जिनकी हमें जरूरत है। Hallelujah. Those things Hallelujah. will follow everywhere, wherever we go. वो चीजें हमें हमारा पीछा करेगी जहां भी हम जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So we should just rejoice in the Lord. इसलिए हमें सिर्फ प्रभु में हमेशा आनंद करते रहना है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. So count it all joy, my brethren, when you fall into various trials. तो वचन कहता है कि मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, इसे आनंद की बात समझो। है ना? Count it all joy, इसे आनंद की बात समझो, because your faith is being tested. क्योंकि तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। And when your faith is tested, जब आपका विश्वास परखा जाता है, we should know that testing of our faith will produce patience in us. और हमें जानना है कि जब हमारा विश्वास परखा जाता है तो उससे धीरज उत्पन्न होता है। Hallelujah. हालेलुया। And patience is the need of the hour. धीरज जो है वो आज के समय में बहुत जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। We all need that patience. हम सबको उस धीरज की जरूरत है, And patience is only produced when you go into trials. और धीरज तभी उत्पन्न होता है जब आपकी परीक्षा होती है, है ना? When your faith is tested, जब आपका विश्वास परखा जा रहा है। that faith is very precious, Bible says. और जो परखा हुआ विश्वास है वो बहुत कीमती होता है। Hallelujah. In the sight of God, that faith is very precious. परमेश्वर की नजर में वो विश्वास बहुत कीमती है। Hallelujah. हालेलुया। So in the sight of God, it is that precious, and we are going through that trials only to prove that this faith that we have, it is genuine. और वो जो विश्वास है वो परमेश्वर की नज़र में बहुत कीमती होता है, और हम जब परीक्षाओं से जाते हैं तो हम उस धीरज को, उस विश्वास को परखा जाता है जो परमेश्वर की नज़र में बहुत कीमती है। Hallelujah. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। Hallelujah. हालेलुया। है ना? The patience will है ना perfect us in every area of our life. धीरज जो है वो हमें हर एक भाग में सिद्ध कर देगा। When we go through trials and everything, जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं, है ना, we are being shaped in the image of God. जब हम मसीह के रूप में ढाले जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Day by day we are being from glory to glory. We are going from glory to glory. हम हर दिन महिमा से महिमा में जा रहे हैं। That's why we should count when we have these precious promises with us, इसलिए हमें जब भी ये कीमती वचन हमारे साथ होते हैं, and we will rejoice. है ना? और तब जाके हम आनंद We मनाएंगे, will count it all joy. तब जाके हम सारी बातों में आनंद We will मनाएंगे, not put confidence in our flesh. तब जाके हम हमारे शरीर में आशा नहीं रखेंगे, We will trust in the Lord. और हम प्रभु में विश्वास करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। है ना? We'll go to another scripture, Psalm 91. हम जाएंगे भजन संहिता 91 अध्याय में, Yeah, and chapter verse 1. पहला वचन। Psalms 91. Here it says, "He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty." जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Hallelujah. So हालेलुया। he who dwells, meaning we have to choose to dwell in the secret place of the Most High. ये वचन कहता है जो उस स्थान में बैठा रहता है, उसका मतलब है हमें चुनाव करना पड़ता है उस स्थान में बैठने का, The secret place और जो गुप्त स्थान है we have to choose. और हमें उसका चुनाव करना है, Secret place is our heart. और जो गुप्त स्थान है वो हमारा हृदय है। Bible says that what man is thinking, no one knows. वचन कहता है कि जो व्यक्ति विचार करता है वो कोई भी नहीं जानता।
Your husband will not know what you're thinking. आपका पति नहीं जानेगा आप क्या विचार कर रहे हो, Your wife will not know. आपकी पत्नी नहीं जानेगी आप क्या No one विचार कर रहे knows. हो, कोई भी नहीं जान The सकता। thoughts that you are thinking, जो विचार आप कर रहे हो only God and you know. सिर्फ परमेश्वर और आप जानते हो। So that is the secret place. वो एक गुप्त स्थान है, And there, if we are abiding with the Lord, और अगर हम वहां पे परमेश्वर के साथ बैठते हैं, hallelujah, हालेलुया, the fruits will manifest outside. जो फल है उसका वो हमारे जीवन में दिखने लगेगा। Hallelujah. हालेलुया। So deep inside the secret place, if we have that intimacy with the Lord, और उस गुप्त स्थान में अगर हमारी नजदीकी है परमेश्वर के साथ, our life will be fruitful. हमारा जो जीवन है वो फल उत्पन्न करेगा, It will be different life. वो अलग जीवन होगा। The life that we received from God is a totally different life. जो जीवन हम परमेश्वर से पाते हैं वो बिल्कुल अलग है, It is Zoe life. वो जोई लाइफ है, जोई Hallelujah. जीवन It comes है, from the Spirit of God. वो परमेश्वर की आत्मा से आता है। It is totally different from the life that we see in the world. वो इस दुनिया में जो जीवन हम देखते हैं उससे बिल्कुल अलग है। Hallelujah. हालेलुया। That life is full of joy, वो जो जीवन है वो आनंद से भरा हुआ है, full of righteousness, धार्मिकता से भरा है, full of the power of God, परमेश्वर के सामर्थ से भरा है, full of the wisdom of God. परमेश्वर की बुद्धि से भरा है। Hallelujah. Hallelujah. All good things contained in that life. सारी अच्छी बातें उस जीवन में है। Hallelujah. The love of God, परमेश्वर का प्रेम, the compassion, जो परमेश्वर की दया है, every characteristics, everything that God has, it is there in that life. परमेश्वर का हर एक गुण उस जीवन में है, Hallelujah. And we have received that life. और वो जीवन हमने पाया है। The day we were born again, we got that Zoe life in us. जिस दिन हमारा नया जन्म हुआ था उस दिन ये जीवन हमें मिल चुका था। Hallelujah. हालेलुया। We should live that life on this earth. उसी जीवन को हमें इस धरती पे जीना है। Hallelujah. हालेलुया। Our life will be different. हमारा जीवन अलग होगा। Bible says the city that is built on a hill cannot be hidden. वचन कहता है कि ऐसा शहर जो ऊंचे पहाड़ पे बना है वो छुप नहीं सकता। If you have that Zoe life manifesting in your life, it cannot be hidden by the world. अगर वो परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है, आप उसको जी रहे हो, तो आप दुनिया से छुप कर नहीं रह सकते। Hallelujah. हालेलुया। People will see, hallelujah, he is different. लोग देखेंगे, दुनिया देखेगी कि ये मनुष्य अलग है। Hallelujah. हालेलुया। I am not like this. मैं वैसा नहीं हूँ, He is a different person. वो एक अलग व्यक्ति है। Hallelujah. हालेलुया। That life starts manifesting in our life. वो जीवन जो है वो हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है। That life is free from bondage. वो जो जीवन है वो बंधन से मुक्त है। It cannot be contaminated by the evil of the world. वो दूषित नहीं हो सकता इस दुनिया की बुराई से। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. That life we have received the day we were born again. वही जीवन हमने पाया है जिस दिन हमारा नया जन्म हुआ था। Hallelujah. So we should meditate in the deep secret place of our heart. We should meditate on this reality. इसीलिए हमें हमारे दिल के जो गुप्त स्थान है वहां पे जाके इन बातों पे मनन करना है, Hallelujah. Then these things will manifest in our life. और तब जाके ये बातें हमारे जीवन में दिखने लगेगी, And it will not be hidden from anyone. और ये बातें किसी से छुपी नहीं रहेगी। Hallelujah. हालेलुया। So we should dwell in the secret place of the Most High. तो हमें परमेश्वर के साथ उस गुप्त स्थान में बैठना Then है, we shall abide under His shadow. तब जाके हम उसकी परछाई के अंदर रहेंगे, And then we have that intimacy. We will start knowing Him. We will start knowing His love, knowing His nature. Everything will start knowing. तब जाके हम उसके साथ करीबी रिश्ता बना पाएंगे और उसके प्रेम को, उसके सामर्थ को हम जानने लगेंगे। We will never be afraid. We will never be moved by any situation, any circumstances of the life. अगर हम ऐसी नजदीकी रखते हैं परमेश्वर के साथ तो हम कभी भी डरेंगे नहीं, कोई भी चीज हमें हिला नहीं पाएगी। Come what may in our life. कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में, Nothing will shake us. कुछ भी हमें उस जगह से हिला नहीं पाएगा, Because we are in the secret place of the Most High. क्योंकि हम परमेश्वर के साथ उस गुप्त स्थान में बैठे हैं। Hallelujah. हालेलुया। And further, David says, आगे दाऊद कहता है, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. और उसके बाद दाऊद कहता है वह Second. दूसरा वचन, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। Hallelujah. हालेलुया। When we have that intimacy with God in the secret place, जब हम परमेश्वर के साथ उस स्थान में निजी रिश्ता रखेंगे, hallelujah, we'll start knowing Him. तब हम उसको जानने लगेंगे And we will say,
और हम कहेंगे, The Lord is my righteousness. तो हम कहेंगे कि परमेश्वर मेरी धार्मिकता We है। will say everything that we know Him. तो हम सब कहेंगे कि हम उसे जानते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And the more we have that intimacy, the more we will know Him. जितना हम परमेश्वर को वो वैसे रिश्ते में जानेंगे, उतना हम उसको अच्छे से जान पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। And in the time of testing and trials, और जब परीक्षा का समय आएगा, this will be reality more than that. ये हमारे लिए सच बन जाएगा उस परीक्षा से ज्यादा। Then we will count it all joy. तब जाके हम सब में आनंद मनाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Because we are knowing that God is my refuge. क्योंकि हम जान चुके कि परमेश्वर ही मेरा शरण स्थान है, And He is my refuge and my fortress. वही मेरा शरण स्थान है, वही मेरा गढ़ है, He is my God. वही मेरा परमेश्वर है, And in Him I will trust. और उसमें मैं विश्वास करता We हूँ। will say like that. हम ये तब कहेंगे, We will speak out. हम ये बोलेंगे, What we know, we will speak out. हम जो जानते हैं वो हम बोलेंगे। Paul says, I believed, therefore I spoke. पौलुस कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ और वही मैं बोलता हूँ, Therefore we also believe and we speak. इसीलिए हम भी विश्वास करते हैं और वही हम बोलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And what we believe in our heart, we have to speak it with our mouth. जो भी हम हमारे दिल में विश्वास करते हैं, हमें हमारे मुख से बोलना है। Bible says that man believe with their heart. वचन कहता है कि मनुष्य जो है वो दिल से विश्वास करता है, We should believe with our heart every word that we are hearing from the word of God. और हमें प्रभु के वचन से अब जो कुछ सुनते हैं वो हमें पूरे दिल से विश्वास करना है, And we should confess it with our mouth. और हमें हमारे मुख से कबूल करना है, Then we are releasing that life, that Zoe life to manifest in our life. और तब जाके हम परमेश्वर का जो जीवन है हमारे जीवन में हम उसे उंडेल रहे हैं। Hallelujah. David was Hallelujah. experiencing this intimacy with God. दाऊद जो है वो परमेश्वर के साथ ये करीबी रिश्ता महसूस करता था, That's why he could say that the Lord is my refuge and my fortress, इसीलिए वो कह पाता था कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और मेरा गढ़ है, my God, and in Him I will trust. मेरा परमेश्वर है, उसमें मैं विश्वास करता हूँ। Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, He shall cover you with His feathers, under His wings you shall take refuge. वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। His truth shall be your shield and buckler. उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। Hallelujah. The Hallelujah. truth of the word of God is our shield and buckler. परमेश्वर का जो वचन है वो ही हमारे लिए ढाल है, वही हमारे लिए कवच है। If we believe that in our heart अगर उस बात पे हम दिल से विश्वास करते हैं and we speak it out with our mouth, और अगर यही बात हम हमारे मुख से बोलते हैं, hallelujah, what may come in our life, हमारे जीवन में कुछ भी आए, we will not be moved. हम हिलेंगे नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. These Amen. things will not bother us. इन बातों का हम पे असर नहीं पड़ेगा। Amen. आमीन। Amen. Further he says that you shall not be afraid of the terror by night, उसके बाद वो कहता है, तू न रात के भय से डरेगा nor of the arrow that flies by the day, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, nor of the pestilence that walks in darkness, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, nor of the destruction that lays waste at noonday. और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। 1,000 may fall at your side तेरे निकट 1000 गिरेंगे and 10,000 at your right hand, और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, but it shall not come near you. परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा। Hallelujah. Hallelujah. 1,000 will fall on this side and 10,000 will fall on the right hand side, but it shall not come near you. तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरे करीब नहीं आ पाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Because you are dwelling in the secret place of the Most High God. क्योंकि आप परमेश्वर के गुप्त स्थान में रह रहे हो, Because that is the real world for you. वही असली दुनिया है आपके लिए। Hallelujah. You are Hallelujah. dwelling there. आप वहां पे रह रहे हो, That's why these things will not bother you. इसीलिए इन बातों पर आप पे असर नहीं पड़ेगा। You will be bother proofed. आप असर रहित रहोगे, आप इम्यून हो जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। Huh? And further, because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. परंतु तो अपनी हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। Ninth. तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। Amen. You have made the Lord your refuge and fortress. तूने अपने परमेश्वर को अपना परम स्थान शरण स्थान मान लिया है, And you are dwelling with him in your secret place. और तू उसके साथ उसकी गुप्त स्थान में रह रहा है।
That's why verse 10 says, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। No evil shall befall on you, कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं गिरेगी, nor shall any plague come near your dwelling. कोई भी Mahamari. दुख महामारी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। Hallelujah. Hallelujah. What a blessing, what a divine protection. कितना दैवी सुरक्षा हमें दिया है परमेश्वर ने। Hallelujah. हालेलुया। है ना? We should choose to dwell in the secret place with the Lord. तो हमें चुनाव करना है कि हम परमेश्वर के साथ उस गुप्त स्थान में रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। One more scripture we will read. एक और वचन हम पढ़ेंगे, Psalms भजन 27. संहिता, भजन संहिता का 27 27 and verse 4. 27 का चौथा अध्याय। One thing I छोटा have बच्चा। desired of the Lord, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, that I will seek, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. कि जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखूं। What an intimacy he had with God. कितना करीबी रिश्ता था इसका प्रभु के साथ। Hallelujah. हालेलुया। When we have that intimacy with God, जब हमारा निकट रहने का जैसे रिश्ता होता है प्रभु के साथ, our desires will change. हमारी जो इच्छाएं हैं वो बदल जाएगी। Carnal desires will leave us. शरीर की जो इच्छा है वो हमें छोड़ देगी। Hallelujah. We will start desiring the desires of the Lord. हम प्रभु की इच्छाओं की इच्छा करने लगेंगे। Hallelujah. Here David says, one thing is needed. दाऊद कहता है कि एक ही बात मैंने प्रभु से मांगी है। We also need one thing. हमें भी एक ही बात की जरूरत है। We should choose that one thing. हमें उस एक चीज का चुनाव करना है। Here David says, one thing I have desired of the Lord, यहाँ पे दाऊद कहता है एक वर मैंने यहोवा से मांगा है that I will seek, कि उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा, that I may dwell in the house of the Lord. कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। Not Sundays and Mondays and some other days, all the days of my life. सिर्फ रविवार सोमवार या किसी दिन नहीं, हर दिन मैं प्रभु के मंदिर में रहना चाहता हूँ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु के लहू की जय। all the days of our life we should dwell with the Lord. हर एक दिन हमें प्रभु के साथ रहना है। Then all the days of your life you will rejoicing. People will say, पागल है क्या ये? तब जाके आप हर दिन इतना खुश रहोगे कि लोग कहेंगे यार ये तो पागल है। Hallelujah. We are pagal for Christ. Hallelujah. Yes. Amen, amen, Amen. amen. Hallelujah. So this desire will change in our lives. और ये इच्छा हमारे जीवन को बदल देगी। When we have that intimacy with God, everything changes. Our desire for this, that, everything will change, and that His desires will come in us. यही होता है जब हमारा परमेश्वर के साथ करीबी रिश्ता बन जाता है कि हमारी इच्छाएं बदल जाती है, उसकी इच्छाएं हमारी इच्छाएं बन जाती है। Hallelujah. And when we Hallelujah. start desiring the desires of the Lord, we will be always joyful. और जब हम प्रभु की इच्छाओं की इच्छा रखने लगेंगे तब हम हमेशा खुश रहेंगे। We will never be poor. We will never be depressed, discouraged. All these things are not for a born again child of the living God. और हम कभी भी गरीब नहीं रहेंगे, डिप्रेस नहीं रहेंगे, निराश नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सारी बातें प्रभु के बच्चों के लिए नहीं है। Today, crush that depression under your feet. तब आज हमें उस निराशा को हमारे पैरों तले कुचलना है। Hallelujah. हालेलुया। Decide that I will rejoice in the Lord always. Again, I will rejoice in the Lord. आज विश्वास करना है कि मैं प्रभु में हमेशा आनंद करूंगा, हमेशा आनंद करता रहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। This is the blessing that has come from heaven to us. और यही आशीष है जो स्वर्ग से हमारे ऊपर आया है। Hallelujah. हालेलुया। The joy is not in the world. जो आनंद है दुनिया में नहीं है, The joy only comes from heaven. जो आनंद है स्वर्ग से आता है। Hallelujah. Hallelujah. So never find joy in the world. इसीलिए दुनिया में कभी भी आनंद मत खोजो। There is no joy in the world. दुनिया में कोई आनंद नहीं है। Hallelujah. In the Hallelujah. world you will have tribulation, Bible says. वचन कहता है दुनिया में तुम्हें कष्ट आएंगे, But be of good cheer. लेकिन धाड़स बांधे रहो, I have overcome the world, he मैंने says. दुनिया को जीत लिया है। Hallelujah. हालेलुया।
Hallelujah. Hallelujah. So we should choose that I will rejoice no matter what happens to me. I will rejoice in the Lord. Again I will rejoice. इसलिए हमें चुनाव करना है कि कुछ भी हो जाए मैं प्रभु में आनंद करता रहूंगा, हमेशा आनंद करूंगा. Hallelujah. Hallelujah. Bible says a joyful heart it works like a medicine. वचन कहता है कि जो आनंदी हृदय है वो दवाई का काम करता है. You will never fall sick. आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, You will never grow old. आप कभी बुढ़े नहीं होंगे. Hallelujah. हालेलुया. The Holy Ghost inside of you revitalizes your body. जो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है वो आपके शरीर को जीवन देता है. Hallelujah. Hallelujah. Your blood sugar will be normal. Your blood pressure will be normal. Blood cholesterol will be normal. Every part and every organ in your body will work as a young child. आपके शरीर का हर एक भाग, आपका शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, आपका शरीर का हर एक भाग वैसे ही काम करेगा जैसे एक बच्चे का काम करता है. Hallelujah. हालेलुया. We possess that divine nature. हम उस देवी स्वभाव में चलते हैं. Hallelujah. Hallelujah. And we possess that divine health. और उस देवी चंगाई को हमने पा लिया है. Hallelujah. Hallelujah. There is no aging for a born again child of the living God. बूढ़ा होना परमेश्वर के बच्चों के लिए नहीं है, Because he renews our youth like that of an eagle. क्योंकि वो हमारी जवानी को नया करता है उस उकाब के समान. उकाब के समान. यस. And he renews our strength every day. और वो हमारे सामर्थ को नया बनाता है. Hallelujah. हालेलुया. So we should believe these precious promises. इसलिए इस अनमोल वचनों पे हमें विश्वास करना है. And we should have that secret place. We should meditate on all these precious promises. और ये जो हमारा गुप्त स्थान है परमेश्वर के साथ, उसमें बैठ के हमें इस सारे वचनों पे मनन करना है. Then we will speak out these things. तब जाके हम इन बातों को I shall बोलेंगे. walk in divine health. मैं बोलूंगा कि मैं देवी चंगाई में चलता I हूँ, will walk in divine protection. मैं देवी सुरक्षा में रहता हूँ, I will walk in divine prosperity. मैं देवी समृद्धि में जीता हूँ. Hallelujah. हालेलुया. Because what you believe in your heart, you have to speak it with your mouth. क्योंकि जो आप विश्वास करते हो आपके दिल में, आपको अपने मुंह से बोलना है. Hallelujah. Hallelujah. Then the Holy Ghost will take that what you have spoken, it will take and it will start manifesting for you. तब जाके जो वचन आपने बोला है, जो शब्द आपने बोले, पवित्र आत्मा उन शब्दों को लेके उनको प्रकट करेगा. When God said, let there be light, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वहां पे प्रकाश हो. the Holy Ghost was hovering on the dark or deep water. It was hovering. When God said, let there be light, the Holy Ghost went and he created the light. जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में कहा कि प्रकाश हो, तब परमेश्वर का जो आत्मा है वो पृथ्वी पर पानी पर मंडरा रहा था. जब परमेश्वर ने शब्द बोले तो उसने वो शब्द को लेके प्रकाश बनाया. Hallelujah. Hallelujah. Same way when you believe in your heart and when you speak with your mouth, the Holy Ghost will take that word and it will manifest for you because you have spoken that word. इसी तरह से जब हम कोई वचन बोलते हैं तो पवित्र आत्मा उन शब्दों को लेता है, और क्योंकि आपने वो शब्द बोला है, पवित्र आत्मा उस शब्दों को लेके उसको सच्चाई बना देता है. Hallelujah. Hallelujah. You can experience what you're speaking. आपने जो बोला है वो आप अनुभव करोगे, Because Bible says there is power of life and death in our tongue. क्योंकि वचन कहता है जीवन और मृत्यु का सामर्थ हमारी जुबान में है. Hallelujah. Whatever we Hallelujah. believe in our heart, we should believe life for us. जो भी हम विश्वास कर रहे हैं हमें सिर्फ जीवन विश्वास करना है. Hallelujah. हालेलुया. And we should speak life इसलिए हमें जीवन बोलना है, because he has come to give us life and life in abundance. क्योंकि वो हमें जीवन और बहुतायत का जीवन देने आया है. Why to speak death? तो क्यों मृत्यु की बात करें? Speak death to depression. क्योंकि निराशा पे मृत्यु बोलिए, And speak death to disease and sickness. बीमारी के ऊपर मृत्यु बोलिए, Speak death to poverty. गरीबी पे मृत्यु बोलिए, Speak death to every work of the darkness. शैतान के अंधकार के हर काम पे मृत्यु बोलिए, But speak life for you and for your family. लेकिन आपके लिए और परिवार के लिए हमेशा जीवन बोलिए. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. We are not ordinary people. हम सामान्य लोग नहीं है. Hallelujah. Do not live an ordinary life. हमें आम जिंदगी नहीं जीनी. God has separated from us from this world. परमेश्वर ने हमें इस दुनिया से अलग कर दिया. We are shining stars in this world. हम इस दुनिया में चमकते सितारे हैं. Hallelujah. हालेलुया. Christ shines through our life. यीशु जो है वो हमारे जीवन से चमकता है. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Should we go further? क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? Hallelujah. One more scripture we will read और एक वचन हम पढ़ेंगे from Luke लूका 10:38. 10वां अध्याय 48 वचन 38. Yeah. लूक 10:38. 10:38. Now it happened as they went that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया
और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। And she had a sister called Mary, और मरियम नामक उसकी एक बहन थी, who also sat at Jesus' feet and heard his word. वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore tell her to help me. परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है? Hallelujah. इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। Hallelujah. Two Hallelujah. types of believers are there in this world. दो तरह के विश्वासी होते हैं इस दुनिया में। One believer welcomes Christ, एक बिलीवर जो होता है वो मसीह को बुलाता है, and the other believer receives Christ. और दूसरा विश्वासी है जो मसीह को स्वीकारता है। Hallelujah. हालेलुया। Many wants to serve for Christ, बहुत लोगों को मसीह की सेवा करनी है, but very few people, they receive Christ and they want to listen Christ. और बहुत कम लोग हैं जिनको मसीह को बुलाना है, स्वीकारना है और सुनना है। Hallelujah. The Hallelujah. people who welcome Christ, जो लोग मसीह को बुलाते हैं they easily get distracted. वो बहुत जल्दी भटक जाते हैं, But the people who receive Christ, लेकिन जो व्यक्ति मसीह को स्वीकार लेता है they are not distracted by anything. वो किसी भी बात से भटकते नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। And Jesus said, और we यीशु will read, कहता है, and Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried about and troubled about many things. प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता, हे मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। है ना? Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. मार्ता, मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। Many people, many believers are like that. बहुत विश्वासी ऐसे ही होते हैं। And Lord is telling them, प्रभु उनसे बात कर रहा है, whoever it may be, dash, कोई भी dash, हो, you are worried and troubled about many things. कि तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, But one thing is needed. लेकिन एक बात जरूरी है। Hallelujah. Hallelujah. Say, one thing is needed. कहिए, एक बात जरूरी है, One thing is needed. एक बात जरूरी है। And Mary has chosen that good part, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, which will not be taken from her. और जो उससे छीना ना जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। This is the only thing which no one can snatch out of you. ये सिर्फ यही एक बात है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। If you choose to dwell in the secret place of the Most High, no one is going to snatch that thing out of you. अगर आपने चुनाव कर लिया है कि प्रभु के साथ उस गुप्त स्थान में आप बैठने वाले हो, उस चीज को आपसे कोई नहीं छीन सकता। This is only one thing that is needed for the body of Christ. ये एक ही बात है जिसके पूरे मसीह के शरीर को, पूरी कलीसिया को जरूरत है, That we should have that dwelling, that intimacy with God. कि प्रभु के साथ उस नजदीकी का रिश्ता रखने की जरूरत है, That will transform our life. और ये बात हमारे जीवन को बदल And देगी, accidentally we will walk in divine nature. और अनजाने में ही हम प्रभु के स्वभाव में चलने We लगेंगे, will never realize why I am not angry. He is abusing me. और हमें पता भी नहीं चलेगा कि अरे मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, ये तो मुझे गालियां दे रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Because the love of God will constrain you. क्योंकि प्रभु का जो प्रेम है आपको विवश कर देगा, You will forgive him. आप उसको माफ कर दोगे, Because you will see beyond the enemies working, enemies using him. क्योंकि आप उस व्यक्ति को नहीं देखोगे, उसके पीछे जो शैतान काम कर रहा है आप उसको देखोगे। Because the Holy Spirit will make that word alive, saying the war is not of flesh and blood. क्योंकि वो जो वचन है प्रभु जीवित करेगा कि जो युद्ध है वो मांस और लहू के बीच में नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। Hallelujah. हालेलुया। है ना? The war is not of flesh and blood. जो युद्ध है वो मांस और लहू का नहीं है। If we are warring with flesh and blood, that is a lie from the pit of hell. अगर हम मांस और लहू के साथ लड़ाई कर रहे हैं तो वो नरक से आया हुआ झूठ है। Hallelujah. हालेलुया। Bible says we know no man after the flesh. वचन कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति को शरीर में नहीं देखते। He who is in Christ is a new creation. जो भी मसीह में है वो नई सृष्टि है। All things have passed away. Behold, everything has become new. सारी बातें बीत चुकी है, सब कुछ नया हो चुका है। Hallelujah. हालेलुया। The intimacy will change our attitude. Everything will be changed.
परमेश्वर के साथ करीबी रिश्ता जो है वह हमारा विचार बदलेगा, हमारा नजरिया बदल देगा। We will see as God sees. हम वैसा देखने लगेंगे जैसे परमेश्वर देखते हैं। We will start knowing as God knows. हम वैसे जानने लगेंगे जैसे परमेश्वर जानते हैं। Hallelujah! हालेलुया। Many times we do not know what we are knowing, बहुत बार हम जानते ही नहीं कि हम क्या नहीं जानते, and we know it wrongly. और हम गलत तरह से जानते हैं। Hallelujah! That is a Hallelujah. lie from the enemy. वो शैतान से आया हुआ झूठ है। But the word of God is the alive and truth. लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो जीवित है, सत्य है, And the Holy Ghost will bring that word alive to और us. पवित्र आत्मा जो है वो उस वचन को जीवित कर In देगा। the time of need, the Holy Ghost will take that word and make it alive to us, and it will empower us. और पवित्र आत्मा जो उस जरूरत के समय में उस वचन को लेगा और हमारे अंदर उस वचन को जीवित कर देगा। Hallelujah! हालेलुया। How he could love Judas Iscariot. यीशु कैसे यहूदा से प्रेम कर सकता था? He's going to betray him, यहूदा उसे धोखा देने वाला था, but still it did not bother him. लेकिन यीशु को उस बात से तकलीफ नहीं हुई। He washed his feet. यीशु ने उसके पैर धोए। What a heart! कैसा हृदय था यीशु का? Same heart we have got. वही हृदय Hallelujah. हमारे अंदर है। Hallelujah! We do not realize that. हमें उस बात की हम उसे जान नहीं पाया उससे। Hallelujah! In the spirit, we are exactly like Jesus Christ. आत्मा में हम एकदम बिल्कुल यीशु जैसे हैं। Hallelujah! हालेलुया। We can wash the feet of those people who are hating us. हम उन लोगों के पैर धो सकते हैं जो हमसे नफरत करते हैं। Hallelujah! We can bless them हम उन्हें आशीर्वादित कर सकते हैं because we are dwelling in the secret place with the Lord. क्योंकि हम प्रभु के साथ उस गुप्त स्थान में रहते In हैं। the heart, you will start loving them. हम हमारे हृदय में उनसे प्रेम करने लगेंगे। In your heart, you will start forgiving them. हम हमारे हृदय में उन्हें माफ कर देंगे, Then it will manifest outside. और तब जाके ये हमारे जीवन में दिखने लगेगा। Hallelujah! हालेलुया। What a joyful life God has given us. परमेश्वर ने कैसे आनंद भरा जीवन दिया है What a हमें। blessed life we have received कितना from God. आशीर्वादी जीवन हमने प्रभु It से sets पाया you है। free. वो हमें आजाद कर देता है। Hallelujah! हालेलुया। Because our life is not hidden from Him. क्योंकि हमारा जो जीवन है उसमें छुपा हुआ है, He knows everything. उसे सब पता है, And we should just give ourselves entirely to Him. और हमें खुद को पूरी तरह से परमेश्वर को देना है। Hallelujah! हालेलुया। And He will correct everything that is wrong in us. और हमारे अंदर जो भी गड़बड़ है वो सारी चीजें ठीक कर देगा, And He will fill our heart with joy and peace, और वो हमारे दिल को आनंद से, शांति से भर देगा, which surpasses all our understanding. और ऐसी शांति से जो हर समझ के परे है, And it will guard our heart and mind in the Lord. और वो हमारे दिल की और मन की दिल और मन की रक्षा करेगा। Hallelujah! हालेलुया। Jesus said, "Let not your heart be troubled." यीशु ने कहा तुम्हारे दिल Which व्याकुल न हो, विचलित न हो, Hallelujah! Just Hallelujah. believe in the Lord. सिर्फ प्रभु में विश्वास करो। He said, "I will never leave you, never forsake you. प्रभु ने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, I am your strength," He says. मैं ही तेरा सामर्थ्य हूं, ऐसा प्रभु कहता "I है। have loved you with an everlasting love." It will never, meaning never go dry. प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुझसे अनंत प्रेम से प्रेम किया है जो कभी सूखता नहीं है, कभी खत्म नहीं Hallelujah! होता। That love never diminish. वो प्रेम कभी खत्म नहीं होता। That is agape love. वो अगापे प्रीति है, It never changes. वो कभी बदलता भी It नहीं। is the same yesterday, today, and forever. वो आज, कल और सदा के लिए एक समान है। We should experience His love. वो ही उस प्रेम को हमें जानना है, अनुभव करना है। Let us all stand in the presence of the Lord. हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े होंगे। Let us ask the Lord, "Lord, I want to experience that agape love in my life. हम प्रभु को मांगेंगे कि प्रभु हमें उस अगापे प्रेम का अनुभव करना है। Every day I want to experience that love, Lord. प्रभु हर एक दिन मैं उस अगापे प्रेम का अनुभव करना And चाहता I हूँ। want to dwell in that secret place with you, Lord. मैं उस गुप्त स्थान में आपके साथ रहना चाहता हूँ प्रभु, And I want to speak the truth in my heart in the secret place. और मेरे अंदर मैं उस सत्य को बोलना चाहता हूँ। Thank you, Abba Father. धन्यवाद पिता, We just want to thank you and give you all the glory, honor, and praise, Dada. हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। It is you, Lord, who is working in every one of us, Lord. सिर्फ आप ही हो प्रभु जो हम सब के अंदर काम कर रहे हो प्रभु। It is marvelous in our eyes. ये हमारे दृष्टि में अद्भुत है। You're working, Lord. You're transforming every one of us, Lord. हमारे अंदर आप काम कर रहे हो प्रभु, हम सबको आप बदल रहे हो प्रभु। We give ourselves to you, Lord. हम खुद को पूरी तरह से आपके हवाले करते हैं प्रभु। Every person present here, Lord, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे है they are precious to you, Lord. वो आपकी नजर में अनमोल है। You love everyone with that agape love, Lord.
आप हर एक से उस अगापे प्रीति से प्रेम करते हो। Lord, let everyone, Lord, who is present here and who is going to see and watch here, प्रभु हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे मौजूद है, हर एक व्यक्ति जो वीडियो देख रहा है प्रभु, Lord, let they all experience that intimacy that you have, Lord. उन सब को प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वो आपका करीबी रिश्ता महसूस करे प्रभु, They experience your love. वो आपके प्रेम को महसूस करे प्रभु, Let them be rooted and grounded in your love and grow day by day. वो आपके प्रेम में वो जड़ पकड़ने पाए प्रभु, और आपके प्रेम में वो दिन ब दिन बढ़े। Thank you, Abba Father. धन्यवाद पिता परमेश्वर, Thank you, Lord. We give you all the glory. धन्यवाद प्रभु, हम आपको सारी महिमा देते हैं, We bless your holy name. हम आपके आदर नाम का आदर करते हैं प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, You are our strength, Lord. आप ही हमारे सामर्थ्य प्रभु, We shall never be moved, Lord. हम कभी हिलेंगे नहीं प्रभु। Thank you, Lord, for ministering to every one of us, Lord. धन्यवाद प्रभु हर एक की सेवकाई करने के लिए, Thank you, Holy Ghost, धन्यवाद पवित्र for आत्मा, making the word of God alive to every one of us, Lord. ताकि आपने परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जीवित किया है प्रभु, And this word is transforming every one of us, Lord. और ये वचन हम सबको बदल रहा है प्रभु। Thank you, Abba Father. धन्यवाद We पिता, receive this word हम इस वचन को स्वीकार करते with a हैं noble heart, Lord, अच्छे हृदय से, which is able to save our soul. जो हमारे प्राण को बचा सकता है। Thank you, Abba Father. धन्यवाद पिता, We bless you, Lord. We give you glory. हम आपको आदर देते हैं, महिमा देते हैं प्रभु। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, Amen. आमेन। बोलो यीशु मसीह की, जय यीशु के लहू की। जय। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा रहेगा, और पूरी कलीसिया कहेगी आमेन। ठीक है, आगे का समय सत्यानारायण। It's so powerful, right? Can you hear me? Yes, no? Yes. So I was just sitting behind now, and that scripture, Philippians 4:4, just came to my mind now, when Pastor was preaching joy. He was talking about joy, joy, joy. So, guys, you must be knowing Philippians was written by Paul. And when he wrote that book, do you know he was in the prison, jail? Can anybody be happy in the jail? But even then, he says, rejoice in the Lord always. The word always na, is basically all the time. Means, if anybody looks at you na, you should be always laughing, smiling, rejoicing. Do you know the word rejoice? What does it mean, anybody? Rejoice. हम लोग use करते हैं ना, rejoice, rejoice, rejoice. But what does it actually mean? Anyone? Exactly. It actually comes from a Greek word called charis, grace. It means basically when God has poured out His grace on us, we need to actually respond to that. And the only way we can respond is by being so happy, because you see, when we laugh, when we rejoice, the devil is more and more angry. Because he cannot see. Because the Bible says the devil only comes to kill, steal, and destroy. He wants our children, he wants to see the children of God in tears and bondage. But no, that's not what God came for. God came for to save. And the Bible says he came so that we may have a life, and life we may have it abundantly. And Paul, when he writes this chapter, rejoice in the Lord, he says the word again. And again he says, again I say rejoice. Kitna stress diya word pe. The reason is because God wants us to be, when we all go in heaven, apna kaam kya hai? Anyone? We are just going to rejoice. Bible says that in His presence there is fullness of joy. Amen. Right? So let's sing this song and let's rejoice in the Lord. I sometimes feel that the chairs are like a distraction, because they are like bound. They don't allow us to move freely. Yeah? Let's move all the chairs behind and let's lose ourselves, and let's make sure we rejoice in God's joy and let His joy be complete in us. Who all knows this song? Rejoice in the Lord always. Yeah? Let's sing it together.
free. I'm so glad Jesus set me free. Oh, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. मैं खुश हूँ मुझे यीशु छुड़ाया, मैं खुश हूँ मुझे यीशु छुड़ाया, ओ मैं खुश हूँ मुझे यीशु छुड़ाया, बोलो जय जय हालेलुया, यीशु छुड़ाया, जय जय हालेलुया, यीशु छुड़ाया. I will enter his gates with Thanksgiving in my heart, I will enter his courts with praise. Hallelujah, I will say this is the day that the Lord has made, and I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा. मैं कहूंगा या ये दिन यहोवा ने बनाया, उसमें खुश हुआ के आनंदित किया. वो आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया. ओ आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory. Any more final, anybody? Yeah. We just want to pray and let's get it. Any last kuch announcements? Any announcements that has to be made? Yes, yes, yes. उसने दाखरस और तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया. उसने दाखरस और तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया. यरीहो के किनारे आदम हुआ पड़ा था, यरीहो के किनारे आदम हुआ पड़ा था. उसने दाखरस और तेल उड़ेला, उसने दाखरस और तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया. यरीहो के किनारे आदम हुआ पड़ा था, यरीहो के किनारे आदम हुआ पड़ा था. उसने दाखरस और तेल उड़ेला. यीशु 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 मैंने उसे पा लिया. यीशु 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 मैंने उसे पा लिया. यीशु 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 मैंने उसे पा लिया. मैंने यीशु को पा लिया. यीशु यीशु मैंने उससे पा लिया. यीशु 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 मैंने उससे पा लिया. यीशु 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 मैंने उससे पा लिया. मैंने यीशु को पा लिया. Amen, guys. Hallelujah. Have a blessed Sunday, guys. Amen. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. हम सब ने यीशु को पा लिया. हालेलुया. आमेन. हम धन्यवाद देंगे प्रभु को. सबसे प्रभु ने बात किया है. आमेन, है ना. लॉर्ड स्पोक टू एवरी वन ऑफ अस. और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हम सबको बदल रहा है ना. क्योंकि ये वचन जो है सत्य है बाइबल में. इट इज नॉट मैनिपुलेटेड, है ना. मैनिपुलेट
नहीं है, एकदम जैसा है ना, फ्रेश ओवन से निकला हुआ फ्रेश है। हालेलुया, है ना। प्रभु उसका सच्चाई हमको देता है क्योंकि हमसे प्रेम करता है वो, है ना। वो चाहता है कि हम आशीर्वादित रहे, हम ऐसा जीवन जिए कि शैतान हमारे पैर के नीचे हम कुचले। हालेलुया, है ना। उसको कुचलने के लिए हमको दिया है, उसका कुछ भी चीज हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह बोलता है द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड इज कमिंग एंड ही हैज नथिंग इनसाइड ऑफ मी। हालेलुया, ऐसे हम भी बोलना चाहिए, शैतान आ रहा है लेकिन उसकी कुछ भी बातें मेरे अंदर नहीं है। हालेलुया, मेरे अंदर सिर्फ प्रभु की बातें हैं। हालेलुया, उसकी बातों को मैं कुचलता हूं। आई रिजेक्ट, आई हेट एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू द डेविल, है ना। तो हम प्रभु के बच्चे हैं, आमीन। तो हम लोग ऐसे ही बढ़ेंगे प्रभु में, और हमारे द्वारा अनेक लोग प्रभु के राज्य में आने वाले हैं, क्योंकि हमारा लाइफ ही गॉस्पेल है ना। जब हम जिएंगे वो वर्ड को लेकर, जब जिएंगे, लोग बोलेंगे कैसा तू गुस्सा नहीं आता, इतना शांत कैसा, तेरे को इतना बोल रहा तो भी कैसे क्या तू शांत है। फिर हम बोलेंगे मैं नहीं है, मसीह मुझ में जीवित है और मेरे को भी चाहिए वो मसीह, बोलेंगे वो लोग। हालेलुया। तो हमारा लाइफ गॉस्पेल होना चाहिए भाई बहनों, है ना। Our life should be gospel and it will attract more people than what we will preach. Hallelujah, है ना। Action speaks louder than voice, Bible says. Not Bible says. लेकिन कितना सच है वो, है ना। क्योंकि हम लोग जो एक्ट करते, जो हम लोग जी रहे हैं, वो चीजें, हमारा एक्शंस को लोग देखते, बातों को नहीं देखते, है ना। People see what we are, है ना, how we are walking, है ना, हमारे चाल चलन को देखते, और उसमें अगर मसीह दिखाई दिया ना, they will get attracted to Christ. Hallelujah, है ना। वो रोशनी उनको आंखों को ऐसा ये हो जाएगा, ये किधर से आ रहा है। आमीन। ऐसा प्रभु ने हमको बनाया भाई बहनों, और परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम लोग उसको हमारे जीवन में, है ना, हर समय मैनिफेस्ट करें, है ना। तो उसके लिए प्रभु हम सबको तैयार कर रहा है। ये किसी मनुष्य का काम नहीं है, लेकिन प्रभु हम सबके अंदर काम कर रहा है। प्रभु ने कहा मेरी कलीसिया को मैं बना रहा हूं और नरक के दरवाजे उसके विरुद्ध में खड़े नहीं होंगे। हालेलुया, हम उसकी कलीसिया है और हम सबको वो बना रहा है। आमीन। हम सबको अंदर से मजबूत बना रहा है, ताकि हम हर बात में, हर आंधी तूफान में हम लोग, है ना, खड़े रहेंगे। आमीन। प्रभु में, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, बहुत धन्यवाद देते पिता, हम सबको प्रभु जी आप चला रहे हो प्रभु, हम सबको तैयार कर रहे हो, बना रहे हो पिता, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता। ये कलीसिया का मस्तक आप हो प्रभु, और हम सब प्रभु जी आपके अंग है पिता, आपके साथ हम सब जुड़े हैं प्रभु, और हर एक शरीर के हर एक अंग में प्रभु जी आपका सामर्थ और आपका सच्चाई, आपका पवित्रता, धार्मिकता सब प्रभु जी आ रहा है पिता, इसके लिए धन्यवाद। और हम सब प्रभु जी बलवान हो रहे पिता अंदर से, इसके लिए धन्यवाद। सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते पिता, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी एक दूसरे से सहभागिता कीजिए और हर समय पे आइए। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, क्षमा मांगते।